बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई। मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। ये फ़िज़िक्स की बुक है आपकी और चैप्टर नंबर 11 जो है ये टू बी कंटिन्यू था। इसके क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। 5 में 2 पार्ट्स हैं और 6 और 7 में 3 पार्ट्स हैं। 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। ए, वाई इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड और गैसेज। ये हम बात पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, बता चुके हैं। चूँकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जुड़े हुए होते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं, इस वजह से। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। एनी मीडियम दैट कंटेन पार्टिकल्स कैन ट्रांसमिटेड साउंड। The speed of sound is not the same in all mediums. Sound wave travel at different speeds in different mediums. Remember that the speed of sound depends on the properties such as temperature, pressure and density of the medium through which it travels. Sound move faster in solid because the molecule of particles of the solids are very close to each other as compared to liquid and gases. ठीक हो गया। 5B है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये हम बात कर चुके हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये दोनों जो हैं ये जो साउंड ट्रैवलिंग है एयर में उस पर इफ़ेक्ट होते हैं। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होता है। टेम्परेचर इज़ अ कंडीशन दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ energy that depends upon the kinetic energy of molecules. Molecules of the medium at high temperatures have more energy. Thus, they can vibrate at a high rate. As the molecules vibrate faster, sound waves can travel more quickly. Humidity also affects the speed of sound in the air. The effect of water vapor on the speed of sound is minimum than that of dry air. The presence of moisture in air replaces oxygen and nitrogen gases that reduce the density of air because the molecular mass of water vapors is less than that of oxygen and nitrogen gases. Since the speed of sound in gases are inversely related to square root of its density, thus humidity increases, the density of the air decreases and sound travel faster. ठीक हो गया। ये दो चीज़ें थी जो इफ़ेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिफाइन इको। If we stand in front of a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain and shout or clap our hands once, we will hear the exact sound repeat after a short moment. The repetition of the sound after reflection is known as an echo. ये हम बात कर चुके हैं, इसके हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं कि किसी आवाज़ का गूंजना, दोबारा आना, उसको हम इको कहते हैं। Explain the working and application of a sonar. SONAR है ये। sonar is extensively used in marine applications due to their high frequencies. Ultrasound wave can travel greater distances. In this method, the transmitter sends out ultrasound pulses and measure the time it takes for the pulses to reflect off a distant object and return to the source of transducer. The position of that object can be identified and its movement can be tracked. This technique is used to measure the depth of seabeds, locate and track submarines at sea and locate explosive mine below the surface of the water. ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई एक ऐसा जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप समंदर के ऊपर से ही समंदर की गहराई में उसके सबमरीन आप दोज़ों का या कोई मिसाइल्स यानी माइंस वगैरह तो उनका पता चला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 ये, हाउ कैन डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखें, कोई भी कंक्रीट की ब्लॉक की सख्त मतलब जैसे पत्थर होता है, इस तरह की चीज़ बनी तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड उसके अंदर जो है कोई खला बन गया है, कोई कैविटी बन गई है। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं उनमें अमूमन आपने देखा होगा डिज़ास्टर होता है, आग लग जाती है या ज़लज़ले से गिरती तो नहीं है लेकिन दरारें आ जाती हैं, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से पता चल जाता है कि अंदर से वो कहीं खाली तो नहीं हो गई, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो बस ये बताया जाता है इसमें। अल्ट्रासाउंड हैज़ हायर penetrating power due to its very high frequency. Those ultrasounds are also used to detect cracks, cavities and flaws in metal and concrete blocks. These invisible cracks or cavities inside the block reduce the strength of the structure. Ultrasonic waves pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitted wave. If there is any defect, the ultrasound will be reflected, indicating the presence of the defect. तो इसकी फिगर जो है पेज नंबर 34 पर बनी हुई है, आप लेफ़्ट साइड पर देखिएगा, ब्लॉक लिखा हुआ है वहाँ
तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 3 टर्म्स हैं, इंफ्रासोनिक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग और अल्ट्रासाउंड है। इंफ्रासोनिक क्या है? साउंड विद फ्रीक्वेंसी बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज़ नोन एज इंफ्रासोनिक। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इंसान की जो सुनने की सलाहियत है वो कम से कम 20 हर्ट्ज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा 20K हर्ट्ज़ है। अगर 20 हर्ट्ज़ से भी कम की कोई आवाज़ होगी तो उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है, वो इंसान नहीं सुन सकता। और इसी तरह अगर कोई इंसान की सलाहियत से ज़्यादा यानी 20K हर्ट्ज़ हमारे कान बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो वो अल्ट्रासाउंड उसमें आता है कि वो अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन रेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो इंफ्रासोनिक साउंड विद फ्रीक्वेंसी बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज़ नोन एज इंफ्रासोनिक। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो इंसान सुन सकता है वो सेकंड वाली है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हेयर इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ एडिबिलिटी और द एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी ये वो रेंज है जिसमें इंसान आसानी से मतलब सुन सकता है। थर्ड अल्ट्रासाउंड है, द साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज, जो इंसानी लिमिट से भी ज़्यादा हैं वो एडिबिलिटी, इसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अच्छा 7B है, हाउ इज़ अल्ट्रासाउंड यूज़ फॉर क्लीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल होता है तो ये पहले भी बात हो चुकी है। ज्वेलरी साफ़ करते हैं या आप अमूमन डेंटल क्लिनिक जाते हैं, वहाँ आपके दांतों वगैरह की सफाई, तो ये सब अल्ट्रासाउंडिंग साउंड से होता है। अल्ट्रासाउंड इज़ कॉमनली यूज टू क्लीन मैनी ऑब्जेक्ट इवन इन हार्ड टू रीच प्लेसेस इंक्लूडिंग ज्वेलरी, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। In this process, object to be cleaned or placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to its high frequency, dust, grease and contamination particles detach and drop. The object thus get thoroughly cleansed. तो ये आप जो है इसमें बताया जा रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट जो सख्त से सख्त ऑब्जेक्ट है और जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड जो सोल्यूशन होता है वो उसको सफाई कर देता है। 7 का C, एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग। हॉस्पिटलों में ऐसी जो अल्ट्रासाउंड चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जिससे तस्वीरें ली जाती हैं, मेडिकल तस्वीरें। तो उसमें पहली है इकोकार्डियोग्राफी, ये दिल की तस्वीर ली जाती है। इट इज़ अ पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर। अ ट्रांसमीटर सेंड्स आउट पल्सेज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। द ट्रांसड्यूसर इज पोजिशन ऑन द चेस्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन एंड एंगल। द पल्सेज मूव अक्रॉस द स्किन एंड अदर बॉडी टिश्यू टू द हार्ट टिश्यूज where the pulses bounce or echo of the heart structure. These pulses are then transmitted to a computer to create moving images of the heart walls and walls. The image produced is called an echocardiogram. जो आपने देखा होगा दिल के मरीज़ों के साथ ये अमूमन की जाती है। उसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है जिस्म के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तस्वीरें लेने के लिए होता है। इट इज़ अ टेक्निक दैट यूज एन इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासाउंड स्कैनर एज सोनोलॉजिस्ट विजुलाइज द ऑर्गन ऑफ द पेशेंट सच एज द लीवर, गाल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एट्सेट्रा। इन दिस टेक्निक द साउंड वेव्स पेनिट्रेट द बॉडी एंड हिट अ बाउंड्री बिटवीन टिश्यूज, for example between fluid and soft tissue, bone and soft tissue, and get reflected from an area where their tissue density changes. The instrument calculates the distance from the probe to the tissue or organ boundaries using the speed of sound in tissue and the time of the return of each echo. These pulses are then converted into electrical signal used to create two-dimensional images of the ऑर्गन। तो ये आपका जो चैप्टर है क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल आपके रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है आज या कल में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।